Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself, Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Contracts and Accounts. Let us see Vision Mission of Department. Vision of the Department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department: there are 3 missions of the department, and these are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes, and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools, experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 5, that is specifications, and today's topic is types of specification. To study this topic, we will go through learning outcome, and it includes course outcome, program outcome and unit outcome. Let us see course outcome. Prepare the detailed specification for various items of construction. यह यूनिट पढ़ने के बाद आप कंस्ट्रक्शन के हर आइटम्स के डिटेल स्पेसिफिकेशन बना सकते हो. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू क्लासीफाई द स्पेसिफिकेशंस बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप गिवन क्राइटेरिया के हिसाब से स्पेसिफिकेशन के टाइप्स बता सकते हो. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट स्पेसिफिकेशन, नेसेसिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन, importance of specification and points to be observed in framing the specification of an item. PWD वर्क के लिए यूज़ होने वाले स्पेसिफिकेशन अलग अलग टाइप के रहते हैं. वर्क से रिलेटेड और मटेरियल से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं. लेट अस सी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन. And these are brief specification, detailed specification, standard specification and manufacturer's specification. इसके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट है ब्रीफ स्पेसिफिकेशन. द जनरल स्पेसिफिकेशन यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोजेक्ट इज द ब्रीफ specification. The specification which gives the brief description of various items of work, specifying the materials, quantities, proportion of materials and gives general idea about the whole work. कोई भी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो सामान्य स्पेसिफिकेशन यूज़ करते हैं
उसे ब्रीफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इस स्पेसिफिकेशन में वर्क से रिलेटेड हर आइटम्स, मटेरियल्स, उसके प्रोपोर्शन और काम की पूरी जानकारी दी रहती है। सेकंड है डिटेल स्पेसिफिकेशन। द स्पेसिफिकेशन इन विच detailed information of the various quantities of materials, procedure of workmanship to be adopted, nature and class of work is mentioned। इस टाइप के स्पेसिफिकेशन में मटेरियल की क्वांटिटीज़, काम के लिए अडॉप्ट करने वाली प्रोसीजर और काम का क्लास, इन सभी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। Detailed specifications for various works are drawn up by an engineering department, and these specifications are printed and used as a standard specification. Hence, most of the items in works are made to standardize specification। PWD के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर उसे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बुक में अटैच करते हैं, उसे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कहते हैं। जनरली कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स के स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन यूज करके बनाते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन। दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशंस in which the properties of products such as strength, thickness, depth, elasticity, chemical composition etc. are mentioned। यह स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट और मटेरियल्स से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें मटेरियल्स की स्ट्रेंथ, थिकनेस, डेप्थ, इलास्टिसिटी और केमिकल कंपोजिशन इत्यादि इंफॉर्मेशन दी रहती है। यह सब स्पेसिफिकेशन ओनर और कॉन्ट्रैक्टर को कैसे यूज़फुल है, यह आगे देखते हैं। लेट अस सी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। द टेंडर डॉक्यूमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स टुवर्ड्स लीगल एस्पेक्ट आर इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड विदाउट स्पेसिफिकेशन। टेंडर डॉक्यूमेंट विदाउट स्पेसिफिकेशन से इनवैलिड और इनकम्प्लीट है। मीन्स स्पेसिफिकेशन यह एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन, द स्पेसिफिकेशन एक्ट एज अ लीगल प्रूफ। अगर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन में कुछ डिफरेंस आता है तो स्पेसिफिकेशन यह एक महत्वपूर्ण लीगल प्रूफ करके यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकेशन फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। ओनर और कॉन्ट्रैक्टर की वर्क से रिलेटेड क्या जिम्मेदारी है, यह स्पेसिफिकेशन से मालूम होती है। मतलब वर्क से रिलेटेड पूरी जानकारी स्पेसिफिकेशन में रहती है। स्पेसिफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल और डॉक्यूमेंट एंड प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकेशन यह एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो दीज आर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन। इन दिस वे, इन टुडेज सेशन वी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन and legal aspect of specification. Hope you understood the portion explained here. And in next session, we will see about detailed specification for RCC slab. Important questions on today's topic are: state the different types of specification, define standard specification, describe legal aspects of specification. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.